Hello dosto, welcome to PG Excellence classes. Are you ready for mastering in computer networks? So keep watching this lecture until end. Please like and subscribe it if you find it useful for your classes or pursuing MCA, BSc, BCA or doing any competitive exam. Okay, it's mainly related to BCA, MCA, UGC NET, UGC NET CSIR or student pursuing computer networks or computer classes, so etc. So we can start with today's lecture. So today's lecture is the second lecture in the series of our data communication and networking. So today's lecture is based on OSI model and TCP IP models in the computer networks. So far we had gone through this: what is communication, what are communication channels, what are data types, what are data flow types, simplex, half duplex, full duplex, topologies, and we did some questions on topologies, mesh topology, number of cable required, number of ports required. Now we are going to do OSI model. OSI, what's the name suggests? OSI means open system interconnection model. Okay, it's an open system interconnection model. What it means exactly? So first we need to know why OSI. So OSI is basically due to some restrictions on the communication, that we already know what is communication, how we did communication, how we want to communicate to others. Okay, language both are preferred na, English or Hindi. Okay, sure. Okay, so we talk both in English and Hindi. So OSI मॉडल क्या है आपका? OSI मॉडल है एक स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसे किसने दिया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था. क्यों दिया था? अभी मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, हमने लास्ट क्लास में बताया था, हमने कम्युनिकेशन किया तो कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है. तो उसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक मॉडल है. दिस इज़ ओनली द रेफरेंस मॉडल, नॉट द स्टैंडर्ड मॉडल. स्टैंडर्ड मॉडल वी आर गोइंग टू लर्न later few minutes. That is TCP IP model. Now we are going to do OSI model. So what is OSI? OSI is open system interconnection. It's given by International Standard Organization. So don't confuse in these two terms. OSI is model and ISO is organization. Okay, OSI is model, ISO is organization, as you saw on your screen. It's little bit messy for you. Now is it okay? Okay, so this model is called OSI, open system interconnection. Why? Because first of all I told you it's a reference model. ये एक reference model है क्योंकि ये डील करता है किस चीज़ से? इसको ओपन सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि ये उन सिस्टम से डील करता है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हैं. स्टैंडर्ड वहाँ नहीं अप्लाई होगा जो कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे. स्टैंडर्ड वहाँ अप्लाई होगा जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है. इस मॉडल को हम OSI मॉडल कहेंगे. इस मॉडल के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको जानकारी. ये मॉडल आपका 7 लेयर्स में डिवाइडेड होता है. हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, हर लेयर के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. ये मॉडल की लेयर्स इतनी भी बड़ी नहीं हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाए, इतनी भी छोटी नहीं है कि सभी फंक्शनैलिटी एक ही लेयर में आ जाए. ओके, सो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कॉलेज लेवल में. प्रिंसिपल्स क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताया? ए लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर डिफरेंट लेवल एब्स्ट्रैक्शन इज नीडेड. मीन्स ईच लेयर हैज़ इट्स ओन वेल डिफाइंड फंक्शन. ओके, upper layer depend on lower layer depend on their lower layer. Okay, each layer should perform a well defined function. Okay, it's done. The function of each layer should be chosen according to the internationally standard protocol. I told you ना, it's a standard. So उसके हिसाब से ही इसके layers की functioning होती है. लास्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया कि इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए मॉडल कि कॉम्प्लेक्स हो जाए डिज़ाइन, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों की फंक्शनैलिटी पूरी एक ही में आ जाए. सो दीज आर आवर मेन एजेंडा. लेयर्स: physical layers, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. So last 3 layers 5 6 7 are the user layers, means we directly interact with that. And the last 4 layer are, it's not user layer, it's system layers, means we don't know how they work inside. Let's take an example. When we wake up in morning, we directly go to the coffee machine and took some coffee. Okay, we don't know what is going in the back end, how coffee is making, how sugar is mixing, how milk is coming from the vending machine. We just know we just need to know what we need to know for making coffee.
how to run a vending machine to make coffee. Okay, we don't need to know how it is functioning in the background. Okay, so start from that first layer. First layer is the transmission layer, also called physical layer. So physical layer क्या होती है आपकी, ये क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है. किस चीज़ का ट्रांसमिशन करती है, डेटा का. ओके, आप कंप्यूटर किस में डील करता है, 0 और 1 में डील करता है. तो फिजिकल लेयर क्या करती है, डेटा को ट्रांसमिट करती है 0 और 1 में. ओके, इट्स दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम. तो जितने भी फिजिकल ट्रांसमिशन होते हैं वो फिजिकल लेयर में होते हैं. मीन्स कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, कनेक्शन कौन कौन, जैसे डिफरेंट राउटर्स कर रहे हैं या डिफरेंट कंप्यूटर कीबोर्ड कर रहा है, इनके बीच में जो फिजिकल ट्रांसमिशन होगा ना, जैसे केबल से होगा या किसी भी चीज़ से होगा, तो वो कैसे हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका फिजिकल लेयर के थ्रू. इसमें क्या होता है, बिट्स यूज़ होती हैं. क्या होती हैं, बिट्स. ओके, डेटा अपर लेयर से फ्रेम के फॉर्म में आती हैं. फ्रेम मतलब बिट्स का कॉम्बिनेशन, बिट्स मतलब 0 1. ओके, सो अपर लेयर से बिट्स में फ्रेम में आती हैं और फिजिकल लेयर में क्या हो जाता है, ये बाइफरकेट हो जाती है अगेन इनटू डेटा बिट्स. ये देखिए डायग्राम, डेटा लिंक लेयर से क्या आया, फ्रेम आया कंप्लीट. इसमें क्या कर दिया, फिजिकल लेयर से बिट्स में डिवाइड कर दिया. कुछ फंक्शंस हैं फिजिकल लेयर के. बॉटम मोस्ट लेयर है, आपको पता ही है. पीपीटी इसलिए लाया हूँ ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में, अपने नोट्स बनाने के लिए. ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस. अभी मैंने बताया आपको, जैसे कोई दो कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड जुड़ा है, माउस जुड़ा है, या फिर कोई भी लैन केबल जुड़ी है, तो ये किस फिजिकल मीडियम से जुड़े हैं, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आपकी फिजिकल लेयर की. फिजिकल लेयर की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में उतनी ही बिट्स का ट्रांसमिशन हो और रिसीवर उतने ही बिट्स रिसीव करे जितने की सेंडर सेंड कर रहा है. ये नहीं कि सेंडर ने 100 पैकेट बिट्स सेंड कर दिए और रिसीवर ने एक ही बिट्स लिया है, अपने रिसीव किया है, एक्नॉलेज किया. इससे क्या होगा, सिस्टम पे ओवरलोड होगा और क्या होगा, हमारा एरर होगा डेटा में. ओके, मीन्स आपने कोई वीडियो भेजी, वीडियो 10 मिनट्स की है, गई वीडियो 2 मिनट्स की, तो अगर मेन एजेंडा उस 2 मिनट्स के बाद होगा तो आपका डेटा यूज़फुल नहीं रहेगा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फंक्शनिंग. सो फंक्शनिंग मैंने आपको बताया, बिट्स को सिग्नल में ट्रांसलेट करता है. फिजिकल लेयर मेनली डील्स विद बिट्स. ओके, फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स. मीन्स जितना सेंडर के पास डेटा है उसके पास एक क्लॉक भी होगी और रिसीवर के पास भी एक क्लॉक होगी, उसके हिसाब से डेटा सिंक्रोनाइज होगा और एक दूसरे के ट्रांसमिट होगा. Physical layer manages the way a device connect to a network media. Okay, we told this earlier that physical layer manages for all the physical connections. It defines the transmission rate, sender and receiver data receiving rates. It defines the way in which the devices are connected to the medium. Same, it provides physical topologies. Topologies we discussed in last classes, that mesh topology, ring topology, star topology, bus topology and hybrid topology. Okay, so if you don't know these, please go through last lectures. We'll provide link below this description in this video. It can use different techniques of multiplexing. You know multiplexing? Yes, n into 1 or 1 to n multiplexing is there. Okay, so data link layer. So data link layer मेनली काम क्या करती है, फिजिकल लेयर थी बिट्स में काम करती है, डेटा लिंक लेयर आपका फ्रेमिंग में काम करती है. ओके, फ्रेमिंग क्या है, बिट्स का कॉम्बिनेशन है. सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा. मीन्स 3 नोड हैं जुड़े हुए हैं आपस में, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवरी प्रोवाइड करता है. इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर. सेम, अपर लेयर से डेटा रिसीव करेगा, नीचे क्रिएट्स करेगा फ्रेम अपनी लेयर में, डेटा लिंक लेयर में, और फिजिकल एड्रेस क्या करेगा, ऐड फिजिकल एड्रेस टू दिस फ्रेम एंड पे दिस टू फिजिकल लेयर. फिजिकल एड्रेस मीन्स इनको फिजिकल लेयर को देगा, फिजिकल लेयर उसको क्या करेंगे, बिट्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे. अब हमारा डेटा लिंक लेयर के 2 पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल. ओके, सो ये जो दोनों का काम है, इनका काम है डेटा फ्लो, एरर डिटेक्शन. इस लेयर में क्या होता है, एरर डिटेक्शन होता है. ओके, सो लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर क्या है, इट डिफाइंस द मेथड एंड प्रोवाइड्स एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्किंग डिवाइस. हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या करता है,
बताता है कि नेटवर्किंग डिवाइस को कैसे कनेक्ट करना है। एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल स्टैब्लिश एंड मेंटेन लिंक्स बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, मीन्स जैसे कंप्यूटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, इसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। लेकिन लॉजिकल लिंक लेयर क्या करती है, वो नेटवर्किंग डिवाइस के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर्स इन डिटेल्स। सो मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन? आई टोल्ड यू ना, इस फ्रेमिंग है भाई मेन फंक्शन, याद कर लो। फिजिकल लेयर बिट्स करता है, फ्रेमिंग कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। क्वेश्चन आएगा, डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स द बिट रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है? जो नेटवर्क लेयर से बिट्स मिली हैं उसको फ्रेम में डिवाइड करता है, फ्रेम में बनाता है, ओके, कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स के पास क्या होता है? सेंडर और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। सेंडर से डेस्टिनेशन में कैसे जाएगा? कुछ तो होना चाहिए ना, इसीलिए फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है? जो फिजिकल एड्रेसिंग होती है आपकी, जो डेटा लिंक लेयर होती है वो क्या करती है? फिजिकल एड्रेस सेंडर और रिसीवर का ऐड कर देती है फ्रेम के साथ। क्यों? क्योंकि अब डेटा लिंक लेयर है, एक बहुत सारे पैकेट हैं, बहुत सारे फ्रेम्स हैं, जा रहे हैं एक नेटवर्क पे, तो कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना उनको, कैसे पहचानेगा डेस्टिनेशन की हाँ ये मेरे लिए है। तो क्या होता है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों का फिजिकल एड्रेस, जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस कहते हैं फिजिकल एड्रेस को, आईपी एड्रेस कहते हैं लॉजिकल एड्रेस को। ओके, मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस इज लॉजिकल एड्रेस। ओके, सो नेक्स्ट हमारा इसका मेन फंक्शन फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है? फास्ट सेंडर फ्रॉम ड्राउनिंग द स्लो रिसीवर। अभी मैंने पिछले में बताया था आपको कि अगर डेटा सेंड हो रहा है फास्ट, रिसीवर और सेंडर के बीच में डेटा का फास्ट हो रहा है, जैसे सेंडर क्या कर रहा है? डेटा को तेज़ी से भेज रहा है, रिसीवर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या होता है? डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल यूज़ करती है मैकेनिज़्म। ओके, क्या करती है? डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म यूज़ करती है। ये देखिए, डेटा लिंक लेयर में क्या है? एक सेंडर है, एक रिसीवर। तो सेंडर यहाँ क्या है? सोर्स एड्रेस है हमारा, 10 से डिनोट कर दिया इन्होंने, इसको 87 से डिनोट कर दिया। ओके, किसको? डेस्टिनेशन एड्रेस को। और डेटा लिंक लेयर ने क्या करा है? ट्रेलर लगा दिया लास्ट में। ट्रेलर मीन्स सम एक्स्ट्रा बिट्स। ओके, जब उन बिट्स को हम हटाएंगे तो हमारा एक्चुअल डेटा आ जाएगा। ये चीज़ किसे पता होती है? डेस्टिनेशन को पता होती है कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगे हैं, वी हैव टू रिमूव इट सो वी कैन सी आवर एक्चुअल डेटा। सो फंक्शंस, फंक्शन इज एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मीन्स नाम से पता चल रहा है एरर को कंट्रोल करने वाला। इन विच डिटेक्ट्स एंड रिट्रांसमिट डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम्स। क्या होता है? सेंडर ने फ्रेम्स भेजी, कुछ उसने क्या किया? डेटा लिंक लेयर ने डिटेक्ट करा एरर कि हाँ अभी रिसीवर के पास नहीं गया है, मतलब फ्रेम सेंड नहीं हुई है, कुछ डैमेज हो गया रास्ते में या कुछ लॉस्ट हो गई है, तो क्या करता है? रिट्रांसमिट करता है फ्रेम्स को किसके पास? डेस्टिनेशन के पास। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? चैनल इज शेयर ऑन मल्टीपल डिवाइस। अभी मैंने बताया आपको एक चैनल है, मल्टीपल डिवाइस से शेयर है, ठीक है। तो मैक लेयर ऑफ DLL प्रोवाइड हेल्प टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द चैनल। मीन्स मैक लेयर, मैक एड्रेस उसमें उसका पुट किया जाता है सेंडर और रिसीवर का, ताकि दोनों का जिसका मैक एड्रेस जिससे मैच हो जाए वो उसको डेटा को रिसीव कर ले, फ्रेम को रिसीव कर ले। ओके, याद रखना डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग में ही काम होता है और फिजिकल लेयर में बिट्स में ही काम होता है। मैक एड्रेस मीन्स फिजिकल एड्रेस। थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? सब में सोर्स टू डेस्टिनेशन हो रहा है, सब में ऑफ अ पैकेट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पैकेट हो रहा है। पैकेट मीन्स अभी तक किस टर्म्स में बात कर रहे थे? बिट्स, फ्रेम्स, अब पैकेट्स मतलब कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। इफ टू सिस्टम्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट डिवाइस लाइक राउटर द नेटवर्क लेयर इज यूज्ड। ओके, सो नेटवर्क लेयर में ये बोल रहा है, नेटवर्क मतलब क्या होता है? नेटवर्क अपना भी हो सकता है सेम और डिफरेंट भी हो सकता है। सो जो डेटा लिंक लेयर होता है वो किसके बीच में डेटा सेंड करता है? वो सेम नेटवर्क पे जो सिस्टम होते हैं उसमें करता है। लेकिन जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो क्या करता है? जो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क में है, जो सिस्टम डिफरेंट नेटवर्क्स में है, उसके लिए हमारा नेटवर्क लेयर है। जैसे हम राउटर्स यूज़ करते हैं, राउटर्स क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क पे होते हैं सिस्टम्स, उन दोनों को लिंक करता है, तो इसलिए नेटवर्क लेयर का वहाँ पे यूज़ होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर में?
कि जो डेटा लिंक लेयर है आपकी वो सेम नेटवर्क पे जो सिस्टम होते हैं उनके बीच में पैकेट डिलीवर करते हैं, और जो नेटवर्क लेयर है वो डिफरेंट नेटवर्क पे जो सिस्टम होते हैं उनके बीच में करते हैं. It provides inter-networking. Inter-networking means different networks. Intra means same network. Intra is for DLL and inter is for network layer. Okay, लॉजिकल एड्रेसिंग. ओके, अभी हमने पढ़ा डेटा लिंक लेयर में जब सेम नेटवर्क में जा रहा है, बहुत सारे फ्रेम पैकेट्स हैं, तो उसने क्या करा, मैक एड्रेस लगा दिया. हाँ भाई तू देख ले, तेरा एड्रेस जिससे मैच हो जाए तो उसे पकड़ ले अपने पास. लॉजिकल एड्रेस क्या बोलता है, लॉजिकल एड्रेस बोलता है हाँ भाई अब तू बाहर जा रहा है नेटवर्क पे, मैक एड्रेस तो हो नहीं सकता, मैक एड्रेस तो डेटा लिंक लेयर ने ले लिया, तो मैं तुझे एक काम करता हूँ लॉजिकल एड्रेस दे देता हूँ. लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस सेंडर और रिसीवर के, जिसके मैच हो जाए हाँ भाई उसे ले जा. सही नहीं है, सही है. तो लॉजिकल एड्रेसिंग यही होती है. ओके, सो जो आईपी एड्रेस असाइन कैसे होते हैं, आईपी एड्रेस या तो लोकल नेटवर्क एड्रेसेस या एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं, या फिर एक DHCP प्रोटोकॉल होता है हमारा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ये क्या करता है, डायनामिकली आईपी प्रोवाइड्स करता है. ओके, इट्स अ डायनामिक प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है राउटिंग. सो राउटर का जिक्र हो रहा है तो राउटिंग भी होगी. सो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग कहाँ होगी, डिफरेंट नेटवर्क्स पे होगी. ओके, सो राउटिंग में क्या होता है, सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में जो भी रूट होता है, बेस्ट रूट जिस पे ट्रैफिक कम होता है, वो राउटर पहले एनालाइज करता है, फिर उस पर अपना जो पैकेट होता है वो भेज देता है ताकि वो रिसीवर के पास जल्दी पहुंच जाए डेस्टिनेशन पे. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली पूरे इंटायर मैसेज की डिलीवरी करती है. अभी तक हम पैकेट्स डिलीवर कर रहे थे, फ्रेम्स डिलीवर कर रहे थे, बिट्स डिलीवर कर रहे थे, अब क्या डिलीवर हो रहा है आपका, अब हो रहा है इंटायर मैसेज. तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये नहीं बोलता कि हाँ भाई सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने भेज दिया. ये कहता है कि मैसेज जा रहा है, पैकेज जा रहा है, लेकिन वो ऑर्डर में जाना चाहिए, मैं इसके साथ नंबर जोड़ देता हूँ, मतलब सीक्वेंसिंग कर देता हूँ. ओके, तो मैसेज डिलीवर हो गया, उसके बाद भी वो एनालाइज करता है, उसे देखता है हाँ भाई ये जा रहा है नहीं जा रहा है. ओके, ऑन द अदर हैंड नेटवर्क लेयर ट्रीटेड ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है वो, और क्या करता है, नंबर जोड़ देता है. हाँ भाई मैं तेरे साथ नंबर जोड़ रहा हूँ, अगर तू इधर उधर भी होता है तो नंबरिंग के हिसाब से डेस्टिनेशन या रिसीवर तुझे सही से सीक्वेंसिंग कर लेगा. ओके, डेटा कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन लेयर से आएगा, अपर लेयर है. ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसपोर्ट किसे देगा, नीचे लेयर को देगा, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क किसे देगा, डेटा लिंक लेयर को देगा. ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दो टाइप्स के हमारे सर्विसेज होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स जो रिलायबल हो, नाम से पता चल रहा है रिलायबल कनेक्शन. रिलायबल मीन्स जिस पे हमें भरोसा हो. ओके, लेकिन क्या होता है जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो टाइम भी लेगा, टाइम लेगा तो उसे स्लोअर ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है कनेक्शनलेस ट्रांसमिशन. ओके, इन दिस टाइप जो ट्रांसमिशन होता है फास्ट तो होता है, लेकिन हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, आपका एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं होता कि हाँ ये पहुंच गया है, ये नहीं पहुंचा है. तो जो रिसीविंग डिवाइस होता है वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, लेकिन जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट देता है अपना रिसीवर, तो इसीलिए वो स्लो होता है प्रोसेस. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. तो सेगमेंटेशन ऑफ मैसेज, अभी बताया मैंने, सेगमेंट में डिवाइड करता है मैसेज को, रीअसेंबली करता है. रीअसेंबली कैसे करेगा, वो नंबरिंग सिस्टम देता है, इसको कहता है भाई मैं तुझे नंबर दे रहा हूँ, तो जो अपने आप को अगर इधर उधर भी पाता है तो अपने नंबर्स के हिसाब से देख लेना. ओके, पोर्ट एड्रेसिंग. पोर्ट एड्रेसिंग मीन्स हर किसी का अपना पोर्ट होता है, जैसे माउस लगाते हैं इस पोर्ट में, अपने कीबोर्ड पोर्ट में लगाते हैं. ओके, आपका कनेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, RJ45 होता है. ओके, डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पोर्ट होते हैं. मोबाइल में अलग पोर्ट होता है, 3.5 mm जैक होता है. कंप्यूटर्स के पोर्ट अलग होते हैं, SMTP पोर्ट, ईच पोर्ट हैज़ इट्स ओन नंबर. लाइक SMTP पोर्ट्स का नंबर है 25, HTTP पोर्ट का है 8080. ओके, HTTP हम बहुत यूज़ करते हैं इंटरनेट में. HTTP मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 80. फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल क्या करता है,
सेम अभी बताया था पिछले थोड़े कुछ टाइम पहले, इसी क्लास में, पिछली क्लास में नहीं, इसी क्लास में, सॉरी। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है, सेंडर के पास जो मैसेज जाता है, सेंडर जब कोई मैसेज भेजेगा रिसीवर के पास, अगर तेज जा रहा है तो उसे कंट्रोल करता है फ्लो। एरर कंट्रोल क्या करता है, एरर कंट्रोल मीन्स नाम से क्या बदल रहा है, एरर को कंट्रोल करेगा। विदाउट एरर वो सेंडर रिसीवर के पास भेजेगा चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट लेयर है हमारी सेशन लेयर। सेशन मतलब, सेशन मीन्स, ओके पहले एग्जांपल लेते हैं। आप कोई टिकट बुक कर रहे हैं, IRCTC पे आप टिकट बुक कर रहे हैं। सेशन मीन्स वो आपको बोलता है कि आपका सेशन रहेगा 10 मिनट तक, मीन्स 10 मिनट्स तक आपने अगर ट्रांजेक्शन नहीं की तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होता है, अगर आप लोग रिमेंबर कर सको तो, योर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो वो सब काम होता है सेशन लेयर का। सेशन लेयर क्या करती है, स्टार्टिंग, एंडिंग, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, मतलब हमें दूसरे नेटवर्क पे जोड़ती है। हमारे लिए वो एक बिगिनिंग टाइम शुरू करती है, एंडिंग टाइम शुरू करती है, और एक मेंटेनेंस करती है एंटायर टाइम में, बिगनिंग और एंडिंग टाइम में। ओके, इट आल्सो प्रोवाइड फॉर ऑर्डरली कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। ऑर्डरली कम्युनिकेशन होता है मीन्स ये नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन पैसे पहले पे कर दें, आईडी पासवर्ड बाद में डालें या फिर कुछ, तो जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ होती है। और सेशन लेयर बेसिकली क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेशन, एंडिंग ऑफ द सेशन एंड मेंटेनिंग द सेशन थ्रू आउट कंप्लीट सेशन। सेम यहाँ पे लिखा है, एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है, एंड करता है सेशन को। ओके, जब हम सेंडिंग डिवाइस को फर्स्ट टाइम रिसीविंग डिवाइस से कांटेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कैसे, सपने तो नहीं आएगा ना उसे, वो क्या करेगा, अपना कोई पैकेट भेजेगा और उससे एक्नॉलेजमेंट आएगा, किससे, रिसीवर से। जब रिसीवर बोलेगा हाँ आई एम रेडी, तो वो क्या करेगा, सेशन को इस्टेब्लिश कर देगा। मीन्स आप हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं करा मोबाइल से, ओके, कंप्यूटर से नेट नहीं चल रहा आपका, ओके, तो क्या होगा, जब नेट नहीं चल रहा तो क्या होगा, आप बोलोगे यार नेट तो चल नहीं रहा, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो ये काम करता है सेशन लेयर। डायलॉग कंट्रोल क्या करता है, डिवाइस कितने टाइम के लिए कम्युनिकेट करेगा, कितने टाइम के लिए नहीं करेगा, ये सब बताता है। ओके, एंड डायलॉग सेपरेशन क्या होता है, ये हर चीज़ के बीच में चेक पॉइंट लगा देता है, डेटा के बीच में। ओके, चेक पॉइंट इसलिए लगाता है ताकि वो चेक कर सके कोई एरर तो नहीं आ रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ आ तो नहीं रहा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, अब देखो सब हो गया, बिट्स हो गया, फ्रेम हो गया, पैकेट्स हो गया, इंटायर मैसेज हो गया। अब हम आते हैं अपनी सेशन लेयर से, हम आ गए थे यूज़र लेयर पे, मतलब हम जो इंटरेक्ट करते हैं। तो एक किससे कंसर्न, ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स चेक करती है दो डिवाइसेस के बीच में। ओके, सिंटैक्स मीन्स सम स्ट्रक्चर्ड डेटा, कहीं कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, उसे चेक करती है डेटा को, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को। और सिमेंटिक्स क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रही है कि उनके पास प्रिविलेज हैं या नहीं है। सो इस लेयर में नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो डेटा इंक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, कंप्रेशन होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्यों होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसलिए होता था कि डेटा सिक्योर बंदे के पास पहुँचे, जो इंटेंडेड रिसीवर है वो उसके पास पहुँचे। सो इट वर डिज़ाइन फॉर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, अब आपकी बहुत बड़ी एक फ़ाइल है तो आपको उसको भेजना है किसी को, तो वो एक ऑप्शन आता है आपका कंप्यूटर में या फिर किसी भी चीज़ में, कंप्यूटर में मेनली, कि आप इस फाइल को कंप्रेस कर दे। कंप्रेस करे क्या होता है, जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, उससे क्या होता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है, कुछ क्वालिटी कम होती है लेकिन साइज़ भी छोटा हो जाता है, तो उसको हम इजीली भेज सकते हैं। तो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इट्स अ लास्ट लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी,
सॉरी, डेटा प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया, इनकोडिंग से ट्रांसलेट करती है डेटा को। एक कंप्यूटर जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो क्या पता डिफरेंट कोडिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हों। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ABCD IC होता है आपका, डिफरेंट होता है क्या पता। तो इसके लिए क्या यूज़ होती है, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है डेटा इंक्रिप्शन। अभी मैंने बताया इंक्रिप्शन इंटेंडेड रिसीवर को ही मिले डेटा, ओके, ताकि बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़ सके, ओके। या फिर जैसे आजकल साइबर एक्टिविटी, साइबर क्राइम काफ़ी होता है, क्या होता है जो साइबर अटैकर होते हैं अपने आप को इंटेंडेड रिसीवर प्रूफ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे बैंक ATMs के लिए कॉल्स आते हैं कि आप अपना ये बताइए आपके ख़राब हो गए, तो वो क्या करते हैं अपने आप को इंटेंडेड रिसीवर की तरह प्रिडिक्ट करते हैं दूसरे बंदे के सामने, ओके। सो इसको बचाने के लिए डेटा इंक्रिप्शन यूज़ होता है। डेटा कंप्रेशन मीन्स नेक्स्ट है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है आपका, वो क्या होता है स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ में रिड्यूस करना है, उसको आगे भेजना है। हम बड़े साइज़ के साथ यूजुअली ईमेल्स में ऐसा होता है कि बोलता है कि साइज एक्सीड प्लीज़ यूज़ ड्राइव, टेक एग्जाम्पल ऑफ गूगल, प्लीज़ यूज़ गूगल ड्राइव और कंप्रेस द डेटा, ओके। सो इससे कंप्रेशन होता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। सो वी कैम द 7th लेयर, इट्स एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या बोलेगी, भाई अभी तक सब कुछ हो गया, इंटरेक्ट कैसे करोगे ये बोलेगी। तो यूज़र को एक्सेस देती है कि नेटवर्क पे इंटरेक्ट कर सके, ओके। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है, मतलब हम जीमेल चलाते हैं वो यूज़र इंटरफेस है, वो एप्लीकेशन लेयर है, ओके। जैसे ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, वर्ल्ड www एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट, ये यूज़र्स को डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। कैसे? मेल सर्विस हम सब यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। मेल हमें बहुत सारे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं कोई या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो मेल्स तो इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस और एनी कंपनी। सो फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस मीन्स हाँ भाई तू ये वाली मूवी मुझे दे दे, यार तेरे पास वो मूवी है, यार तेरे पास ये एप्लीकेशन है, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि पास में ही हम सेंड कर रहे हैं। जो रिमोट होस्टिंग होती है आजकल, जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, जो अभी कोरोना वगैरह चल रहा है, इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें भी रिमोट कंप्यूटिंग का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ओके। रिमोट लॉगिन, सेम एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। आजकल जो इंटरनेट है वो काफ़ी, इंटरनेट तो ऑलवेज डिमांड में रहता है, लेकिन आजकल जो है आपका काफ़ी इससे हमारा दिक्कत हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि OSI लेयर क्या है। हमारी OSI लेयर 5 लेयर हैं जो हमने पढ़ी, ओके। सो OSI लेयर हमारा क्या था, एक रेफरेंस मॉडल था बस। उसको हम स्टैंडर्ड मॉडल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो बस एक रेफरेंस के लिए है। किसके लिए है? रेफरेंस के लिए, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है TCP/IP मॉडल। सो TCP/IP मॉडल क्या था? भाई जैसा मैंने आपको बताया, OSI मॉडल क्या है आपका? OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, मीन्स हम बस इसके रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम TCP/IP की बात करेंगे, ये सबसे पहले तो ये डिज़ाइन किसने किया? ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डिज़ाइन किया 1960 में, ओके। और इसको एक स्टैंडर्ड बॉडी है, ये एक स्टैंडर्ड बॉडी है, तो हम इसे एक स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल को, ओके। सो इसमें क्या होता है, इसमें लेयर्स वही हैं, कुछ लेयर दूसरी लेयर्स के अंदर एम्बेडेड हो गई हैं। तो इसमें बेसिकली 4 ही लेयर है हमारी। सबसे ऊपर वही एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट, एंड देन होस्ट टू होस्ट लेयर, लास्ट लेयर। होस्ट टू होस्ट लेयर को हम होस्ट टू नेटवर्क लेयर, उसको हम नेटवर्क इंटरफेस भी कहते हैं। तो कौन सी 4 लेयर हैं? प्रोसेस या एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर, ओके। हुआ क्या, जो एप्लीकेशन लेयर है वो तो सेम रही, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर। ऊपर की जो 3 लेयर थी, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, वो तीनों एप्लीकेशन लेयर में एम्बेड हो गई। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम रही, इंटरनेट लेयर सेम रही, जो नेटवर्क लेयर है। जो आपकी लास्ट की 2 लेयर है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, वो क्या हुआ, नेटवर्क लेयर के अंदर एम्बेडेड हो गई,
तो ये आपका TCP/IP मॉडल है। तो अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं। सामने डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले जो ये बता रहा है कि नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या बोलती है, नेटवर्क इंटरफेस, आप कुछ भी कह लेते हैं। तो वही जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का ये कॉम्बिनेशन है। किस में थी ये लेयर थी OSI मॉडल में। ओके, तो OSI लेयर में मॉडल थी। इसमें क्या होता है, वही फिजिकल एड्रेसिंग, डिवाइस कैसे कनेक्ट हो रहा है, फिजिकली कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब इसमें होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इसमें सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ओके, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा प्रोटोकॉल इस लेयर के लिए है, इसमें लगभग सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारी आती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या बताती है, ये बोलती है कि हम लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा करेंगे ओवर द एंटायर नेटवर्क। ओके, मीन्स कोई भी नेटवर्क हो, इंटर नेटवर्क हो या इंट्रा नेटवर्क है, ये बोलती है कि हम लॉजिकल ट्रांसफ़र करेंगे डेटा का। लॉजिकल ट्रांसफ़र मीन्स तो कुछ मेन प्रोटोकॉल्स बताती है कि हाँ मैं इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करूँगा या करूँगी, जो भी है। सो IP स्टैंड फॉर, पहला जो ये यूज़ करती है प्रोटोकॉल वो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेम से पता चला ये सोर्स और डेस्टिनेशन के, देखो जो भी होगा लेयर्स में सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए ही होगा। ओके, सो IP में आपके 2 वर्जन आते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं लेक्चर को। IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कितने वर्जन हैं, 2 हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 किस में यूज़ होता है, वेबसाइट्स में होता है, लेकिन जो IPv6 है वो भी काफ़ी ग्रो कर रहा है। क्यों IPv6 की प्रेफरेंस क्यों आई IPv4 क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं, नंबर ऑफ़ एड्रेस हैं, वो IPv4 में लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ यूज़र्स, लेकिन IPv6 में वो लिमिटेड नहीं हैं। ओके, ICMP इसको स्टैंड फॉर, नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ ICMP। हम बेसिकली यहाँ पे 2-3 प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, IP, ICMP और ARP। ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामने जो आपके लेयर्स हैं इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो होस्ट होता है हमारा, जो हमारे होस्ट है, जो हमारा कंप्यूटर है, होस्ट आप कैसे पता लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में, आप अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए होस्ट नेम, तो आपके जितने भी होस्ट हैं, आप कंप्यूटर जो भी होस्ट हो रहा है उस पर आपका जो कंप्यूटर का एड्रेस है वो आ जाएगा, IP एड्रेस। ओके, सो ARP नेक्स्ट प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये फिजिकल एड्रेस फाइंड करता है, किससे, लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, MAC एड्रेस। ओके, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल 3 पढ़ लिया हमने इंटरनेट लेयर में, ARP, ICMP एंड IP। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, ये एनालॉगस है किसके, जो OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेती है उसके एनालॉगस है, नेम ही सेम है। सो क्या होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, एरर फ्री डेटा डिलीवरी होती है, पिछली अभी लेक्चर में उसमें बताया मैंने OSI मॉडल में। सो क्या होता है, ये बेसिकली 2 आपके प्रोटोकॉल पे चलती है, TCP और UDP। देखो भाई सिंपल रखते हैं, TCP रिलायबल होता है, UDP रिलायबल नहीं होता। ओके, सो कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जो TCP होता है वो सीक्वेंसिंग और सेगमेंटेशन भी यूज़ करता है। सीक्वेंसिंग में बताया था मैंने, जब डेटा अगर इधर उधर हो जाए तो सीक्वेंस के हिसाब से उसे दोबारा से लगाया जा सकता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल है, लेकिन इस पर ओवरहेड बहुत होता है क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इंक्रीज़ ओवरहेड ऑलवेज लीड टू इंक्रीज़ कॉस्ट, और बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में कॉस्ट को सबसे पहले देखा जाता है। तो इंक्रीज़ ओवरहेड होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट है UDP। UDP क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है UDP में, तो इसलिए क्या होता है, वो कनेक्शन नॉट रिलायबल होता है। ओके, वो नॉट रिलायबल होता है, उसमें बहुत सारे कनेक्शन नहीं हैं,
इसलिए क्या होता है, रिलायबल भी नहीं होता और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये क्या है, कनेक्शन लेस। नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या बोलती है, जो टॉप 3 लेयर है ना वो एसआई मॉडल में, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, वो सब एम्बेडेड हो गई हैं किस में, एप्लीकेशन लेयर में। तो जो प्रोटोकॉल इसमें प्रेजेंट है वो है HTTP, HTTPS, FTP, हर किसी का अपना एक पोर्ट नंबर है, हर किसी का। तो आपका काम ये होगा कि आप हर जितने भी प्रोटोकॉल हैं, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Telnet, SSH, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFX और बहुत हैं, तो उन सब के बारे में आप उन सब के पोर्ट नंबर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो ये सब आपके प्रोटोकॉल हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं। देखो, अब हमने लेयर्स पढ़ी चारों, उसकी 7 लेयर्स पढ़ी, तो यार कुछ डिफरेंस तो होगा, वो पढ़ लेते हैं। जो TCP होता है उसका मीन्स क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OSI क्या करता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब जो रेडी टू कम्युनिकेट है सिस्टम उनके लिए, और TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसको ट्रांसमिट करना है बस। TCP में 5 लेयर या 4 लेयर, OSI में 7 लेयर्स। TCP IP रिलायबल है, OSI लेस रिलायबल है। TCP IP हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है, OSI मॉडल हमारा क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, जैसे रेफरेंस मॉडल। ओके, नेक्स्ट है आपका जो TCP IP मॉडल है वो एक हॉरिजॉन्टल अप्रोच फॉलो करता है, हॉरिजॉन्टल अप्रोच। ओके, हॉरिजॉन्टल यू नो ना, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल अप्रोच। OSI फॉलोज अ वर्टिकल अप्रोच, मीन्स वाई एक्सिस। ओके, जो OSI है वो वर्टिकल अप्रोच फॉलो करता है। तो आज हमने देखा TCP IP और OSI मॉडल में डिफरेंसेस क्या हैं, होता क्या है। पिछली क्लास से लेक्चर को रिलेट करिए, पिछली क्लास से कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ पिछली क्लास के लेक्चर को देखिए, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास के लेक्चर का लिंक डालूंगा। नेक्स्ट वीडियोज़ आएगी इस टर्म्स में, आपका चैनल्स होते हैं, स्लाइडिंग प्रोटोकॉल्स होती है, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल्स लाइक नॉइजी चैनल्स, नॉइजलेस चैनल्स, आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स और उन पर न्यूमेरिकल्स, और इस टॉपिक पे मैं आपका न्यूमेरिकल्स जल्द ही लेके आऊँगा। सो प्लीज़ आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बेसिकली उनके साथ जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट वगैरह की, BSc BCA के एंट्रेंस के लिए, MCA के एंट्रेंस के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए तो वीडियो बेस्ट है, आई प्रॉमिस यू। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इसे देख लिया तो। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड कीप वॉचिंग PG Excellence क्लासेस।